start the electric field. You will see two terms. The first one is electric field intensity, which is represented by E, and the another term is electric flux density, sometimes also called as field density. So we will encounter two terminology. First one is electric field intensity, and the second one is electric field density, or mostly called as electric flux density. तो आपको हमेशा दो टर्म्स मिलेंगे, एक होगा आपका फील्ड इंटेंसिटी और एक होगा आपका फ्लक्स डेंसिटी. Okay, so one is represented by intensity is represented by capital E, while the density is represented by T. Okay, so हम उसे कई बार flux density भी बोल देंगे, no issue, but actually it is flux density, not the field density. But कोई issue नहीं है, both are none of the same. Okay, so let's start. What is the electric field intensity? First of all, let us see what do you mean by electric field. Can anyone tell me the actually you all have studied this one in your physics, so just try to tell me what do you mean by electric field intensity. सर इनविजिबल रेज हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं चार्जेस को, लाइक मैग्नेटिक फील्ड. Like no, just Sir, field generated by any charge. Field generated by any charge. If I am asking you, what do you mean by field? So it is a region or a space around a charge which is affected by the other charges. Okay, somehow. Conservative Force, fine. Can you correlate this one with a fundamental quantity for fundamental thing which actually can be measured? सबसे फंडामेंटल चीज से आप इसको रिलेट कर सकते हो. सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए. Okay, can I say it's nothing but the energy distribution? कह सकते हैं? Yes sir. Is it correct if I am saying electric field is nothing but some kind of energy distribution? Is it okay to say or not? बोला जा सकता है ऐसे कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं हम उसे कि नहीं. मे बी द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट सी ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी. ओके, even we are energy. So see, electric field is nothing but somehow, as you have most of you have suggested, it's a force or it's a something which will going to affect the another charge particle. Okay, so something which can affect the another charge particle. What is that something? That something is nothing but the kind of energy. Okay, so we can also say that energy actually if we are exerting force on somebody, actually what happens? अगर मैं इस पेन को एक फोर्स इंसर्ट करना चाहूँ, अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, व्हाट इट मींस आई एम ट्राइंग टू मूव दिस पार्टिकल. ओके, so the same thing is true for the electric field intensity. Actually what happens, suppose a charged particle is there. Okay, so surrounding to it there is kind of certain kind of energy distribution, but that energy is in the form of electric in the certain different form which we can distinguish as the electric field. So what I'm saying, suppose you have a charged particle, surrounding to this charged particle you have certain energy distribution. Okay, what is the nature of this energy distribution? If another charged particle comes to this one, so it the another charged particle will also causes its energy distribution. And what happens at some moment when this charge particle will move towards the first charge particle, what happens? The energy distribution of both the charge will start interacting, and the interaction may leads either attraction or repulsion. Okay, but the thing is that what happens, the energy distribution of both the charge particles start interacting with each other, and the interaction may lead either attraction between these two particles or repulsion between these two particles.
if there is an attraction between these two particles, what happens? The motion will start. If the charged particle is free, the motion will start, and hence what happens because of that interaction, because of the interaction between these two energy distribution, particle will have a kinetic energy. Okay, so what I can say, this is the we can correlate this one as certain kind of energy distribution. But let us try to talk in terms of bookish language. What do you mean by electric field? Electric field intensity is nothing but the force exerted by a test charge, on unit coulomb. पर यूनिट कूलम कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है. सपोज इफ आई एम सेइंग आई हैव अ टेस्ट चार्ज, या ऐसा समझ लो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हुई है. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू मूव अ टेस्ट चार्ज इन दिस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन. इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिजीम है उसमें मैं एक एक्सटर्नल टेस्ट चार्ज को प्लेस करता हूं. सो व्हाट हैपेंस, दिस एक्सटर्नल टेस्ट चार्ज विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सर्टेन काइंड ऑफ मोशन. ओके, मतलब अगर आप उस टेस्ट चार्ज को छोड़ दोगे तो उसमें मोशन स्टार्ट होगा, आइदर टुवर्ड्स द फिक्स चार्ज और अवे फ्रॉम द फिक्स चार्ज जिसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं. सो अल्टीमेटली द थिंग विल हैपन दैट it will start either attracting or repelling this repulsion will start with respect to this test charge. Now ultimately what I can say, if this test charge will start experiencing either attraction or repulsion, definitely the energy causes certain kind of force which is applied on this test charge. तो इसका मतलब जब हम टेस्ट चार्ज को फिक्स चार्ज की तरफ लाएंगे तो इसमें कुछ फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस फोर्स आइदर इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस फिक्स चार्ज और स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द फिक्स चार्ज. नाउ the force which is acting on this test charge is the electric field. मैंने पहले भी आपको बताया था what is test charge is the unit coulomb charge particle. 1 कूलम का जो प्लस 1 कूलम का जो चार्ज पार्टिकल होता है, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज. सो द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, अब मैंने इसे 1 टेस्ट चार्ज बोला, दैट इज व्हाई इट इज 1 कूलम. अगर मैं रैंडम बोलूं, कोई मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज क्यू है और वो चार्ज अगर सम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज. मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे पर यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है. अगर ये 10 कूलम का चार्ज है और इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, so इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 कूलम. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so now you can derive the expression for the electric field intensity. So let us try to imagine, actually we have two charged particles A and B. Just first of all, I have a charged particle Q. Okay, and because of the in the surrounding of this charged particle, let us suppose up to this region the energy distribution of this charged particle is significant. Okay, so यहाँ पर आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा इस रिजीम में पूरे.
Okay, so suppose we have a test charge q and surrounding to test charge in certain circular symmetry is, or we can not circular, spherical symmetry, there is some energy distribution. Okay, and the energy distribution we can find out. ओके, सो यहाँ पर कुछ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है एंड डेफिनेटली द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग लाइक इट इज मैक्सिमम नियर द चार्ज पार्टिकल एंड एज लॉन्ग एज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। ओके, सो मान लो ये इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, इस बाउंड्री के बाहर जो इसका फील्ड का एक्सपीरियंस है, या जो मैं बोलूँ इसके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को हम वीकली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और ऑलमोस्ट हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। लेट अस सपोज हियर वी हैव +1 कूलम test charge. Okay, q1 is equal to 1 coulomb. Okay, so what happens, how can we define, अगर हम इस रीजन के बाहर हैं तो इस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो इतना नेग्लिजिबल होगा कि दैट विल नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। ओके, क्योंकि उससे ज्यादा तो इनर्शियल फोर्स होंगी, वो ज्यादा इंपैक्टफुल होंगी। लेट अस स्टार्ट मूविंग दिस चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स दिस बाउंड्री। जैसे ही चार्ज पार्टिकल मूव करते करते यहाँ पर आएगा, इट विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सर्टेन काइंड ऑफ फोर्स। अब फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ क्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। जैसे जैसे हम इसे टुवर्ड्स द चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे, व्हाट हैपेंस, द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस टेस्ट चार्ज ऑफ 1 कूलम विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। सो अगर आप कोई ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर अगर इसे ऑब्जर्व करता है बाय होल्डिंग दिस चार्ज पार्टिकल, होल्ड करते हुए इसे धीरे धीरे मूव करेगा, सो द ऑब्जर्वर विल एक्सपीरियंस सर्टेन काइंड ऑफ फोर्स। या तो ऑब्जर्वर को फोर्स लगा के 1 कूलम को क्यू के पास जाने से रोकना होगा, या ऑब्जर्वर को फोर्स लगा के 1 कूलम को क्यू से अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकना होगा। ओके, सो व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली, द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल बिकॉज ऑफ दिस चार्ज क्यू, force acting on this charge particle, test charge of 1 coulomb, because of this charge q is called as electric field intensity of this charge q. Okay, so that means what I can write force acting on the test charge due to the charge q is called as electric field intensity of the q. Is it clear to everyone? सभी को क्लियर है? अच्छा, मान लो अगर मैं ये एज्यूम कर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस एज्यूम दिस चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव। तो एक बात बताओ, ये 1 कूलम को फॉर एग्जांपल, अब चलो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 1 कूलम यहाँ पर है, वन कूलम यहाँ कहीं पर था, ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, ठीक है। सो टेल मी वेयर द चार्ज पार्टिकल विल मूव। एक दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। किस पॉइंट की तरफ मूव करेगा? बी। बी की तरफ मूव करेगा। अब एक बात बताओ, एक चार्ज पार्टिकल 1 कूलम मान लो स्टेशनरी था, ठीक है। अब मान लो एक टेबल है, ये जो मान लो एक फ्लैट सरफेस है, एक टेबल का सरफेस है, ये जो स्क्रीन दिख रही है आप मान लो एक टेबल का सरफेस है, वो बी की तरफ मूव करेगा। अभी स्टार्ट में जब मैंने स्टार्ट किया Q और 1 कूलम रखा, तो एक बात बताओ, दोनों के बीच में, मतलब अगर दोनों चार्ज पार्टिकल, अगर हम मान के चलें, इमेजिन करें कि वो कुछ साइज, पर्टिकुलर साइज का एक बॉल है, छोटे छोटे 2 बॉल हैं, एक पे 1 कूलम का चार्ज है और एक पे +Q कूलम का चार्ज है, तो डेफिनेटली उनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर आप एज्यूम करते हो, अगर आप एज्यूम करते हो कि इनफाइनेटिसिमली स्मॉल है, तो पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात ही नहीं आपकी। मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 कूलम अगर फ्री है तो वो बी की तरफ मूव करेगा, अगर मूव करता है तो डेफिनेटली इट विल रिक्वायर काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? यस सर। वो काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से? सर दोनों चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक में। काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अगर मैं आपकी बात
से चलो एग्री करता हूँ कि वो जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी है, जो दो चार्ज सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, दैट विल कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो ये चीज क्या कोरिलेट हो पा रही है कि एनर्जी के एग्जिस्टेंस की वजह से ही 1 कूलम मूव कर रहा है बी की तरफ। यस यस सर। सर। क्लियर है सभी को? अच्छा, अब मैकेनिक्स में आप ये पढ़ते आए हो कि किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। यस सर। तो अगर यहाँ 1 कूलम का चार्ज मूव कर रहा है टुवर्ड्स बी, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द एज पर द मैकेनिक्स देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन 1 कूलम टुवर्ड्स द पी। एज पर द मैकेनिक्स 1 कूलम चार्ज पार्टिकल पे बी, ए से बी की तरफ कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। यस सर। अब इस पूरे स्क्रीन पे देखें, 1 कूलम तो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन चार्ज है। तो ऐसी कौन सी एंटिटी है जिसकी वजह से चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है, जिसकी वजह से इस पे फोर्स प्रोड्यूस हो सकता है? प्लस क्यू कूलम का चार्ज। ठीक है, अब प्लस क्यू कूलम जो है वो अपने आप में तो कोई ह्यूमन बीइंग या कोई मशीन तो है नहीं जो रोबोटिक आर्म है जो फोर्स उसे पुश करे या उसकी तरफ फोर्स लगाए। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ऐसा नहीं है। नो सर। एक सिंपल सा बॉल था, बॉल अपनी जगह टिका हुआ है, लेकिन उसकी वजह से 1 कूलम उस तरफ मूव कर रहा है, या यूं हम कहें कि 1 कूलम को वो बी की तरफ मूव करा रहा है और खुद प्लस क्यू जो है वो दूर जा रहा है। मतलब 1 कूलम को बी की तरफ पुश करेगा और एट द सेम टाइम खुद ए से दूर जाएगा, खुद इस तरफ जाएगा, एज पर द एक्शन रिएक्शन पेयर, और यू कैन से इस तरफ मूव करेगा। इज इट? यस सर। अगर मैं इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हुए देखूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन दोनों की फील्ड जैसे जैसे इंटरेक्ट होगी, रिपल्शन की वजह से दोनों फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगी? यस सर। अब मैंने तो बात की एनर्जी से, क्योंकि उनका फील्ड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है जो एक दूसरे को एक अवे कर, दूर पुश कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, मतलब इंटरेक्ट होते ही एक दूसरे को दूर पुश कर रहे हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। अब एज पर द मैकेनिक्स अगर मैं इस चीज को, इस एनर्जी के कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 1 कूलम मूव कर रहा है, ऑटोमेटिक मूव कर रहा है टुवर्ड्स द बी। इसका मतलब एक स्टेशनरी पार्टिकल स्टार्ट करता है मोशन तो डेफिनेटली उस पर फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से उसमें मोशन हो रहा है। न्यूटोनियन फिजिक्स अगर फॉलो करें तो उस पर अगर मोशन, वो मोशन में आ रहा है, उस पर बी की तरफ मूव कर रहा है तो डेफिनेटली कुछ फोर्स है। वो फोर्स आया कहाँ? वो फोर्स आया बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लस क्यू एंड 1 कूलम। तो इसी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को हम फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है 1 कूलम को जो पुश करने की कोशिश कर रहा है, सो पर यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है पुश करने के लिए, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हुआ? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। Okay, fine. So let's try to formulate this one. If so, let us try to formulate two charge system. Let us suppose we have two charge system, plus Q, and let us suppose this is Q observation, observed QO. इनके बीच में जो separation है that is R. Okay. Let us suppose this point is A, this point is B. Now, can you tell me what is the force acting on Q naught? यस सर। Due to Q. What is the force? 1/4 pi epsilon naught. Okay. Let us suppose medium is also there, dielectric medium है, तो जनरल मान लेते हैं एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। सो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इज इट? यस सर। अब डायरेक्शन क्या होगी इस पे फोर्स? देखो मैं एज्यूम करता हूं कि Q नॉट भी मेरा पॉजिटिव है,
अगर मैं क्यू नॉट भी पॉजिटिव एज्यूम करता हूं तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू इच अदर। इसका मतलब फोर्स कहीं हमारा ए से बी की तरफ डायरेक्टेड होगा। Yes, sir. तो उसे अगर हम डायरेक्शन बताना चाहें वेक्टर फॉर्म में तो हम कैसे बताएंगे डायरेक्शन? कि मेरा फोर्स, मुझे इतना पता चल गया कि जो फोर्स है वो ए से बी की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब पॉइंटेड टुवर्ड्स बी। तो अगर मुझे ये एक्सप्लेन करना हो, किसी को लिख कर बताना हो डायरेक्शन, तो हाउ कैन आई से यहाँ पर हम सबसे पहले वेक्टर बी ए देखेंगे। वेक्टर बी ए इज नथिंग बट, फॉर एग्जाम्पल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इट इज नथिंग बट वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, where O is origin. Is it? इस तरह से आप एज्यूम कर लो, यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज दिस वेक्टर तो कैसे बताओगे आप? यस सर, OB माइनस OA। या OB माइनस OA, ठीक है। ट्रायंगल ठीक है, दैट इज O। सो वेक्टर OB दैट मीन्स दिस वेक्टर, और वेक्टर OA को माइनस कर रहे हो दैट मीन्स टुवर्ड्स दिस वन। तो एज पर द रूल व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर? वेक्टर AB होगा, दिस वेक्टर होगा। नेगेटिव करोगे OA तो मतलब A से O की तरफ वेक्टर का डायरेक्शन, OB O से B की तरफ, तो क्या होगा रिजल्टेंट? AB होगा। व्हाट्स द वेक्टर B? अब अगर हम इससे डायरेक्शन, अब इसमें कुछ मैग्नीट्यूड भी है, अगर हम डायरेक्शन की बात करें सो दैट इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर BA, विच इज नथिंग बट वेक्टर BA डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर BA। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम हमेशा यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन बताते हैं। ओके, is it clear to everyone? So if I would like to associate the direction, then direction should be unit vector BA. Is it clear? यस सर। So what is the हाँ सर BA के अपोजिट साइड लगेगा ना, मतलब इक्वल एंड अपोजिट नहीं। लगेंगे। इस दोनों क्यू पे पॉजिटिव पूछ, चार्जेस इस हैं। क्यू पे ये इसको पुश करेगा इस तरफ और ये इसको पुश करेगा इस तरफ। मैं ऑब्जर्व पॉइंट को, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को क्यू नॉट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो इसमें मोशन इस तरफ होगा ना, दोनों रिपेल करेंगी। यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। Fine. So now tell me what is the force acting on Q naught, force per unit charge? मतलब अभी हमने देखा कि तो Q नॉट पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है। Q नॉट हो सकता है 10 कूलम का हो। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं Q नॉट पे पर यूनिट चार्ज कितना फोर्स लग रहा है, पर यूनिट चार्ज। Q नॉट कूलम पे F फोर्स लग रहा है तो 1 कूलम पे कितना लगेगा? अपॉन Q। अपॉन Q नॉट लगेगा। यस सर। Q नॉट पे अगर F फोर्स लग रहा है तो 1 कूलम पे कितना लगेगा? मैथमेटिक्स से सिंपल, कितना लगेगा बताइए आप लोग? F अपॉन Q नॉट। F अपॉन Q नॉट। व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, sir. Okay, so that means okay, it means हाँ सर आपने ये बोला कि फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट ड्यू टू Q, तो सर Due to Q Q. नॉट पे, हाँ ड्यू टू Q, तो Q नॉट पे लेफ्ट साइड पे फोर्स लग रहा है, तो सर AB कैप होना चाहिए ना। Yes, sir. सर AB कैप होना चाहिए ना, AB। डायरेक्शन क्या है? इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हो कि इनिशियल माइनस फाइनल करते हो? पहले एक बात बताओ, दोनों पॉजिटिव हैं तो Q पे A से B की तरफ लगेगा कि नहीं? फोर्स ऐसे ही लगेगा। यस सर, यस सर तो होगा। फाइनल पॉइंट क्या हुआ?
बी। क्लियर हुआ? यस सर, समझ गए। और भी कोई बोल रहा था यस सर, उसको भी क्लियर हुआ? Yes, sir. फाइन। ओके, सो आप हमेशा याद रखना फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट सीधे से। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होगा? एफ नॉट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, एंड दैट इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर बी ए। और एज पर डिफिनेशन मैंने क्या बताया था? व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्यू। क्यू। ठीक है, तो अब हम इसी चीज को फर्दर लिखने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकली डेफिनेशन। तो व्हाट आई कैन से, फील्ड ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, फील्ड ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल, ओके। कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? ड्यू टू चार्ज पार्टिकल कोई भी हो सकता है, लेट अस सपोज ड्यू टू सम चार्ज पार्टिकल ऑफ q डैश, field due to a charge particle q dash acting on charge q is E is equal to limit q tends to 0 f upon q। q tends to 0 कहने का मतलब है ये एक पॉइंट चार्ज है, इनफाइनेटली स्मॉल पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट लिमिट q tends to 0 force upon the charge particle q। Is it clear? यस सर। अब मैंने लिमिट ली है q tends to 0, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि q हमारा एक पॉइंट चार्ज बन गया, एक पॉइंट चार्ज बन रहा है। नाउ टेल मी व्हाट हैपेंस if the q is actually moving towards the 0? इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तरफ टेंड होगी। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं अभी ये आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना। मैंने बोला q डैश है, q डैश की वजह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हुई, मान लो यहाँ पर कहीं q है। अब मैं लिमिट बोल रहा हूँ q टेंड्स टू 0, q 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो व्हाट हैपेंस टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E? अगर मैं q को 0 पुट करूँ, q 0 की तरफ टेंड करेगा, व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E? मुझे सभी से रिस्पॉन्स चाहिए। इनफाइनाइट, व्हाट अबाउट अदर्स? इनफाइनाइट, सभी इनफाइनाइट बोलते हैं। कांस्टेंट कांस्टेंट, ओके। वैसे बोला किसने कांस्टेंट? एक मिनट, हु सेज कांस्टेंट? सर हाँ सर, कांस्टेंट ही होगा। कांस्टेंट होगा। यस सर। व्हाट अबाउट कोई एक लड़की भी रिस्पॉन्स कर रही Yes, है sir. कैंसिल हो जाएगा वो, हो जाएगा ये। कांस्टेंट आ जाएगा। क्या कैंसिल होगा? सर जैसे एफ क्यू डैश क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये भी वो Q फार्मूला का रखोगे तो- यार, फाइन। हाँ, गुड। एज पर द फार्मूला इट इज कांस्टेंट, बट एक्चुअली इट इज कांस्टेंट। गुड। आप सभी का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। अनिरुद्ध, आपका ऑब्जर्वेशन भी काफी अच्छा था। सो यहाँ से आपको फॉर्मूले से, अगर मैं ये नहीं बोलता हूँ, अगर अभी तो आपको फॉर्मूला एफ पता था, फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉर्मूला ही ना पता होता, तब कैसे जज करते कि कांस्टेंट होगा कि नहीं? एक बात बताओ, ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यू प्राइम का है ना? यस सर। क्यू जब उस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा तो क्यू इंटरेक्ट होगा उस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पे, लेकिन क्यू पे कितना अमाउंट चार्ज है, क्या वो इसके खुद के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर सकता है? नो सर। देखो, दो चीजें होंगी, एक आप लोग पढ़ते होंगे पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, वो टू पार्टिकल सिस्टम का जो इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है उसकी बात होती है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ Q डैश के एनर्जी की। क्या Q डैश की जो खुद की इटर्नल एनर्जी है दैट कैन बी इम्पैक्टेड बाई Q? Q में कितना चार्ज है, क्या उससे इम्पैक्ट होगा Q डैश की अपनी खुद की एनर्जी? नो सर। नहीं ना। तो एक बात और, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है, एक बात बताओ बेटा, जैसे Q 0 की तरफ मूव करेगा
एट मैक्स क्या होगा, वो मिनिमम क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। जीरो मतलब जब कोई चार्ज ही नहीं है तो न्यूट्रल पार्टिकल पे क्या चार्ज लगेगा, कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, तो एफ जीरो हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अगर आप क्यू को जीरो मूव कराते हो, फॉर एग्जांपल, मतलब बाउंड्री कंडीशन क्या आ जाएगी, क्यू की वैल्यू जीरो, तो क्यू की वैल्यू जैसे जीरो होगी एफ बेटा ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, क्योंकि Yes, जब sir. क्यू जीरो हो गया तो कोई चार्ज ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा, कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो क्यू डैश किस पे फोर्स लगाएगा, किसी पे नहीं लगा सकता। तो इसका मतलब एफ जीरो हो गया, जीरो बाई जीरो, मैथमेटिक्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। यस सर, इंडिटरमिनेट फॉर्म को या सॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो उसको Constant है। ठीक है, तो ये चीज हुआ आपका दूसरा तरीका ये सोचने का था। तीसरा, आप चाहे तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हो फॉर्मूले से। दिस आर द थ्री वेज यू कैन क्रॉस चेक। तो आपको ये समझ में आएगा, नो, अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट फिक्स है, मेरे को जो चार्ज को जीरो मूव कराना है सर्टेन वैल्यू से, वो सेम इसी पॉइंट पे रहते हुए, पॉइंट ए पे रहते हुए ही मूव कराना है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इस क्यू डैश की वजह से जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस पॉइंट पे तो हमेशा फिक्स बनी रहेगी, मतलब फील्ड फिक्स बना रहेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट एट दिस पॉइंट। बट अगर मैं पॉइंट वेरी कराऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नो लॉन्गर कांस्टेंट, इट विल वेरी। इज इट ओके? यस सर। फाइन, किसी को कोई डाउट है? Anybody has any doubt? No, sir. Sure. Okay. Fine. So I think you can also calculate the electric field intensity due to the charged particle. Calculate कर सकते हो। Two particle system का है तो what should be the formula? Can anyone tell? Can I say this is the electric field intensity acting on the charged particle? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, so if I'm saying what is the this is the Q dash, this is the Q, ये आपका फिक्स चार्ज है, तो because of the electric field, because of this charge Q, what should be the electric field? That is 1/4 pi epsilon naught epsilon r Q upon r square unit vector AR, where r is the separation between these two particles. This is my observation. क्लियर हो गया? Yes sir. So before going to the next topic, okay, in the next class I will discuss the electric flux density, but let me give you a question. ऐसे रैंडम एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं। पॉइंट ए है आपके पास, पॉइंट बी है आपके पास, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट लेट अस सपोज 3,2,1 है, बी का कोऑर्डिनेट है -4,-3,1,0। नाउ यहाँ पर +2 कूलम का एक चार्ज पार्टिकल है, मीडियम इज एयर। टेल मी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट उसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग करके आइए, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मैंने वेक्टर बनाया, मतलब आपको डायरेक्शन भी बताना है, ऑन द पॉइंट बी ड्यू टू +2 कूलम चार्ज। क्लियर है सभी को क्वेश्चन? सर पॉइंट जो ए है सर उसके कोऑर्डिनेट फिर से बताना। 3,2, ओके, 3,2,1 है, 1 3,2,1 है, बी का कोऑर्डिनेट है -4, -3,0, ओके। और पॉइंट ए पे +2 कूलम का एक चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, सो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल यू नीड टू कैलकुलेट what is the force acting on this +2 coulomb. This is your assignment, you need to submit it online, ठीक है। Okay sir. मैं सेम असाइनमेंट अभी फ्लोट कर दूंगा, आपके पास टाइम है, आप सबमिट कर सकते हो, अभी मैं शाम तक में फ्लोट करूंगा, बट क्वेश्चन यही रहेगा आपका, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। Fine. So this is all about the today's class. Let me give you the password. And in the next class, we will discuss electric flux density, and then we will go for the boundary condition.
एक्चुअली बाउंड्री कंडीशन इतनी जल्दी सिलेबस में नहीं आना चाहिए, बट इट्स ओके अगर आ गया है तो. दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन. बेटा मैं चैट बॉक्स में पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, आप लोग मार्क कर देना अटेंडेंस. Now you all may leave. Okay, so this is all about today's class. अब आप exit कर Thank you, सकते हैं. Okay, welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Okay, welcome to all.